بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اس کے اپنے ہی اس قدر صفاق ہو جاتے ہیں کہ غیروں سے گلہ کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں تقریباً 10-11 سال کی تھی۔ امی ابا مجھ سے پیار کرتے تھے، زندگی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو گلی میں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ یہ لوگ ٹرک سے سامان اتار کر ایک گھر میں لے جا رہے تھے۔ میں گھر آئی، امی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ساتھ والے گھر میں نئے پڑوسی آئے ہیں۔ مجھے بھی یہ سن کر خوشی ہوئی کہ چلو میری کوئی ہمجولی تو آئے گی جس سے میں جی بھر کر باتیں کروں گی۔ یوں تو میری بہن حسنہ بھی تھی، ہم اکثر ساتھ ہی ہوم ورک کیا کرتے تھے، مگر وہ ذرا کم گو تھی، میں شوق اور چنچل تھی۔ مجھے باتیں کرنا اور کھیلنا زیادہ پسند تھا۔ جب سے اماں نے بتایا تھا کہ پڑوس میں نئے لوگ آ رہے ہیں، اسی دن سے میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ نہ جانے کون لوگ ہوں گے، ان کے گھر میں بیٹی ہوگی بھی یا نہیں۔ خیر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلے دن ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چھت سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خاتون کھڑی تھی، سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ سر پر اچھی طرح دوپٹہ جما رکھا تھا۔ میں آنٹی کو سلام کر کے کمرے کے اندر لے آئی۔ امی کو بتایا کہ سامنے والے پڑوس سے آنٹی آئی ہیں۔ امی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امی اور عظمیٰ آنٹی میں خوب باتیں ہوئیں، اور اس وقت تو مجھے اور خوشی ہوئی جب آنٹی نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو کہ تقریباً میرے ہی ہم عمر تھے۔ خیر اس دن مختصر سی بات چیت کے بعد آنٹی ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ آنے والے 2-3 دنوں میں میری عمیر اور آسیہ سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی۔ یہ لوگ میرے ہی اسکول کے ساتھ والے اسکول میں پڑھتے تھے۔ عمیر 8ویں میں تھا جبکہ آسیہ میرے ساتھ ہی 6ٹھی کی طالبہ تھی۔ میں تو ان دنوں ناسمجھ تھی، مگر عمیر میں تھوڑا بہت شعور آ چکا تھا۔ میں اکثر نوٹ کرتی کہ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، جن کا مفہوم میں کبھی نہیں سمجھ پائی۔ میرے لیے وہ اکثر کھانے پینے کی چیزیں لایا کرتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے میرے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ خیر میں تو ان احساسات سے نابلد تھی، مگر شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد آنٹی دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ امی سے مزید بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ آنٹی ایک زمانے میں مڈل تک بچوں کو پڑھایا بھی کرتی تھیں۔ اب خدا جانے یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ امی نے یہ سنا تو فٹ سے میرے بھی ٹیوشن کی بات کرتی۔ میں تو گھر میں پڑھتی نہیں تھی۔ ہاں البتہ حسنہ کافی سنجیدہ تھی۔ اس دن کے بعد سے امی نے مجھے کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد تم آنٹی کے گھر جاؤ گی، ہوم ورک وہیں پر کرو گی اور آنٹی ہی تمہارے ٹیسٹ وغیرہ لیں گی۔ خیر مجھے اتنا برا بھی نہیں لگا کیونکہ وہاں آسیہ بھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ بھی باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ عمیر کے تو جیسے اوارے نیارے ہو گئے تھے، وہ بھی مجھ سے خوب باتیں کرتا، جبکہ آنٹی کچھ خاص پڑھاتی تو نہیں تھیں، بس مجھے اور حسنہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتی، ساتھ اپنے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی کہ جو بھی اسکول سے ہوم ورک ملا ہے وہ بیٹھ کر مکمل کرو۔ اب یہ سب تو میں گھر میں بھی کر سکتی تھی، بہرحال آنٹی کے بارے میں کسی سے کیا شکایت لگاتی۔ ہم چاروں بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے، لوڈو وغیرہ کھیلتے۔ شام ہوتے ہی آنٹی ہمارے دروازے کی کنڈی کھول دیتی۔ میں اور حسنہ گھر چلے جاتے، جبکہ عمیر اور آسیہ آنٹی کے ہتھے چڑھ جاتے۔ آنٹی ان سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا آنٹی سارا دن اور کیا کام کرتی ہیں جو ان سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہی صورتحال جاری تھی۔ ایک دن میں اپنا ہوم ورک والا رجسٹر آنٹی کے گھر بھول آئی۔ صبح میرا ٹیسٹ تھا، مجھے وہ رجسٹر لازمی چاہیے تھا۔ مجھے آنٹی کے گھر جانا تھا، مگر کیسے جاتی؟ ابو بھی گھر پر نہیں تھے، وہ تو اکثر رات کو لیٹ ہی گھر آتے تھے۔ اس بات پر تو امی کی کئی بار ان سے لڑائی بھی ہو چکی تھی، مگر ابا پھر نہ مانتے اور روزانہ رات کو تقریباً فجر سے پہلے ہی گھر آتے تھے۔ تب اکثر میں اور حسنہ اماں ابا کے لڑنے جھگڑنے کی آوازوں سے اٹھا کرتے تھے۔ خیر اب اس دن بھی ابا تو گھر پر تھے نہیں، گلی سے جانا ذرا محال لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آنٹی کی چھت سے پھلانگ کر ان کے گھر چلی جاؤں، ویسے بھی وہ تو لیٹ ہی سوتی تھیں، ابھی تک جاگ رہی ہوں گی۔ میں اپنی چھت سے گئی اور آنٹی کی چھت پر کود کر دھیرے سے ان کی چھت کا دروازہ دیوار سے بنے سوراخ سے ہاتھ ڈال کر کھولا اور پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے اتر گئی۔ میرا رخ اسی کمرے کی جانب تھا جہاں میں اور حسنہ، آسیہ اور عمیر کے ساتھ بیٹھ کر ہوم ورک کیا کرتے تھے۔ میں اس طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چوکنی ہو کر پیچھے ہو گئی۔ پورے گھر میں گہرا سناٹا تھا، 1-2 کمروں کی لائٹس آن تھیں۔ مجھے بھی خواہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس کمرے میں لائٹ آن تھی میں اس کی طرف چلی گئی، مگر دروازے کی اور سے ہی میں نے وہ منظر دیکھا کہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فوراً دبے پاؤں وہاں سے پلٹی
होमवर्क का रजिस्टर लेना भी गवारा नहीं किया और भागते हुए घर वापस आ गई। घर आकर मैंने जो देखा मनोअन अम्मा को सुना दिया। अम्मा ने पहले तो मेरी बात पर यकीन न किया, मगर फिर जब मुझसे तफसील पूछी तो अम्मा के भी हाथों के तोते उड़ गए। वो तो आग बगोला हो गई। अब वो अब्बा के आने का इंतज़ार कर रही थी। खिलाफे मामूल अब्बा भी ज़रा जल्दी आ गए। अब्बा के आते ही अम्मा उन पर बरस पड़ी। कहाँ थे बशीर तुम? मैं पूछती हूँ, क्या इस बच्ची ने जो सब देखा है वो सच है? अम्मा ने अब्बा की तरफ खूंखार निगाहों से देखते हुए कहा। अब्बा की गुस्सीली नज़रें एकदम मेरे चेहरे पर गड़ गईं। अब्बा तो साफ मुकर गए, मगर फिर अम्मी ने मेरे सर की कसम दी तो खामोश हो गए। अब्बा की खामोशी उनके गुनाह का सबूत थी। बस फिर क्या था, घर में एक कोहराम मच गया। अम्मी ने अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। उन्हें घर से जाता देखकर हम दोनों रोने लगे, मगर हमारे बाप ने हमें भी कमरे में बंद कर दिया। अम्मा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। हालांकि कसूर मेरी माँ का नहीं था। मैं तो उस लम्हे को कोसने लगी जब मैंने ये सारी बात आकर अम्मा को बताई थी। काश मैं कुछ देखती ही ना, काश मैं उनके घर ही ना जाती, तो आज मुझे अपनी माँ से जुदा ना होना पड़ता। खैर, जो होना था वो तो हो गया। होने वाली को कौन रोक सकता है। अम्मा के जाने के बाद अब्बा को तो जैसे खुली छुट्टी मिल गई। अब वो दिन को भी घर कम ही आते थे, जबकि आंटी के घर में था ही कौन, एक बेटा और बेटी, जबकि आंटी जवानी में ही बेवा हो गई थी। मुझे अब आंटी न जाने क्यों बुरी लगने लगी थी, मगर जितना हम आंटी से नफरत करते, अब्बा उतने ही उनकी राहों में बिछे जाते। हम दोनों को ये बात बहुत बुरी लगती थी। अम्मी की याद हमें बहुत सताती। अब्बा ने सितम पर सितम ये कर डाला कि हमें भी आंटी के घर ले गए और कहा कि ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हें जो कहेगी उसे तुम मेरा हुक्म समझना। अब्बा के इस कदर इसरार करने के बावजूद भी मैंने कभी आंटी को माँ का दर्जा नहीं दिया। देती भी कैसे? मेरी माँ एक शरीफ खातून थी, उनसे भला अम्मी का क्या जोड़ हो सकता था। खैर, हमें अंदाज़ा हो चुका था कि अब्बा अब आंटी से निकाह कर चुके हैं। ये सब कब और कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। घर में अजीब से तनाव की कैफियत रहती थी। अब तो उमेर भी मुझसे बात न करता। वो अक्सर बुझा बुझा सा रहता था। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। वो घर से बाहर रहने लगा। माँ के इस कदम ने उमेर को बहुत दुख पहुँचाया था। एक दो बार मैंने उमेर को सिगरेट पीते भी देखा। मैंने उसे मना करने की कोशिश की, मगर शायद वो बुरी राहों में बहुत आगे निकल चुका था। अब उसे रोकना नामुमकिन हो चुका था। आंटी ने उमेर की ये हालत देखी तो उसे एक मैकेनिक की शॉप पर बिठा दिया। काफ़ी अरसा वो मैकेनिक के पास काम करता रहा। पढ़ाई तो छूट चुकी थी, जबकि अब सोबत भी बुरी हो गई थी। कुछ अरसा वहाँ काम करने के बाद उमेर दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसका आंटी से बहुत कम ही राब्ता होता था। अब तो शायद वो जवान हो चुका था। पहले उसका कभी कभार फ़ोन आ जाता, मगर अब वो हफ्तों गायब रहता था। आंटी भी अपनी दुनिया में मगन थी। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है। हुस्ना की शादी उन्होंने उजलत में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ कर दी। खुशकिस्मती से ये लोग अच्छे निकले और हुस्ना की शादीशुदा ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। अब घर में सिर्फ मैं और अब्बा रह गए थे। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती। मुझे रातों को अक्सर नींद न आती थी। पूरी पूरी रात में जागती और अम्मा को याद करती रहती, जबकि अब्बा की वही पहले वाली रूटीन हो गई थी। वो अक्सर रात को देर से घर आते और आते ही या तो सो जाते या फिर अपने किसी काम में मगन होते। मेरा इस ज़िंदगी से जी उकताने लगा था। मैं उमेर को भी बहुत याद करती थी। मेरा उसके साथ बचपन गुजरा था। हम दोनों एक साथ खेलकर बड़े हुए थे, जबकि अब अचानक बीच में जुदाई की दीवार आ गई थी जो मुझसे काटे नहीं कट रही थी। एक दिन मैं इसी तरह अपनी सोचों में मगन थी। न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। तकरीबन रात के 12 बजे मेरी आँख खुली। शायद मैं बेदहानी में बेवक्त ही सो गई थी। जब आँख खुली तो याद आया कि मैंने तो रात का खाना भी नहीं खाया। गले में मारे प्यास के कांटे चुभ रहे थे। मैं उठी और बिना कमरे की रोशनी ऑन किए दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल आई। मैं राहदारी में थी कि मुझे किसी खटके का एहसास हुआ। छत के दरवाजे की तरफ से, छत वाले दरवाजे से किसी के छलांग लगाने की आवाज़ आई थी। ये आवाज़ सुनकर ही मैं डर गई। मुझे लगने लगा था आज हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। इस मामले में मैं बड़ी डरपोक थी। उस लम्हे की हैबत तो मुझे आज तक नहीं भूलती, जब वो साया चलता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। उस आदमी का कद तकरीबन 6 फुट से भी ज़ायद होगा, जबकि चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उसे देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैं किचन की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी।
जबकि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ आंटी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे बढ़ता देखकर मेरे हलक से चीख निकल गई। बस फिर क्या था, चीखों का एक सिलसिला शुरू हो गया। मुझे चीखता देखकर आंटी अपने कमरे से निकल आई, मगर वो उस आदमी को देखकर ज़रा भी हैरान न हुई, बल्कि उसके साथ ही चलती हुई वापस मेरे कमरे में आ गई। मुझे कमरे में बंद करके डराने धमकाने लगी। मैं उन्हें अंकल के साथ देखकर हैरान रह गई। ये पता नहीं कौन थे और रात के इस पहर अम्मी से क्या बात करने आए थे। आज इतने बरसों का गुबार मेरे दिल से बाहर निकल ही आया। अब जबकि मैं समझदार हो चुकी थी, इस मामले की नज़ाकत को समझती थी, मैंने आंटी से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने मेरे बालों की चोटी से पकड़कर मुझे सख्त लहजे में कहा था, जानती नहीं हो मुझे कि मैं तुम जैसों का क्या हशर करती हूँ? अपनी माँ का हाल याद है ना? उसने भी मुझसे एक बार ऐसा ही सवाल किया था। देखो अब उसका हाल, तुम भी उसकी तरह यहाँ से ऐसी गायब होगी कि फिर नजर नहीं आओगी। आंटी ने ये कहते हुए मेरा मुंह अपने हाथों के पंजे से आज़ाद कर दिया और मुझे उस औरत से, जिसे अपनी माँ कहने लगी थी, शदीद नफरत महसूस होने लगी। उस रात मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैं अब्बा को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर अम्मा ने वो बातें कही थीं कि मेरा अब अब्बा से तो क्या, खुद से भी बात करने का जी नहीं चाह रहा था। अम्मा की नज़रों में मैं अब खटकने लगी थी। वो मुझ पर कड़ी नज़र रखती थी, मुझे अक्सर ही अपने कमरे में बंद रखती। एक दिन मैं शाम के वक्त सोकर उठी तो घर में कुछ गहमा गहमी देखी। उठकर बाहर आई तो आंटी के चेहरे पर खुशी के रंग फूट रहे थे। मैंने देखा तो कमरे में एक नौजवान बैठा था, जिसे देखते ही मैं पहचान गई। ये उमैर था, जो ठीक 10 साल बाद अपने घर वापस आया था। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे अब मेरे मसले हल हो जाएंगे, मगर मैं क्या जानती थी, मेरी ज़िंदगी तो मसाइल का अंबार है जो शायद कभी ख़त्म न हो। खैर, मोहब्बत का तो तरंग ही अलग होता है। मैं और उमैर जब तन्हाई में मिले तो हमने एक दूसरे से खूब गिले शिकवे किए। मैंने देखा उमैर पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी किसी बात का उसने गर्मजोशी से जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत और वीरानी छाई हुई थी। वो बहुत मायूस लग रहा था। यूँ लगता था दुबई में जाकर उसने तरक्की नहीं, तनज़्ज़ुली का सफ़र तय किया है। उसकी ये हालत में समझ सकती थी। जो कुछ उसकी माँ ने उसके साथ किया था, उसके बाद ऐसा रवैया यकीनी था। मगर इस बात की मुझे तसल्ली थी कि उमैर पहले की तरह आज भी मुझसे मोहब्बत करता था। मेरे लिए उसकी आंखों में मौजूद जज्बात में कोई कमी नहीं आई थी। इसी बात की मुझे तसल्ली थी और थोड़े ही दिन बाद ये तसल्ली यकीन में बदल गई जब उमैर ने अपनी माँ से मेरे रिश्ते की बात की। आंटी तो पहले ही अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि वो उनके शादी वाले इक़दाम से उनसे सख्त खफा था। सो उन्होंने फ़ौरन उमैर की बात मान ली। जबकि अब्बा तो थे ही अम्मा के गुलाम, उन्हें इस पर क्या एतराज़ हो सकता था। यूँ मैं अपने ही घर में उमैर की दुल्हन बनकर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई थी। आंटी जो कुछ कर चुकी थी वो मैं भूली तो नहीं थी, मगर अब वो मेरी सास बन चुकी थी। सो मैंने उनसे कुछ न कहा। हाँ, अलबत्ता हमारे बीच एक खिंचाव सा रहने लगा था, जिसे मैंने भी कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बस अपने शौहर और बाप की खिदमत करना था। अब्बू जैसे भी थे, मेरे सर पर एक साहिबा की तरह थे। उनकी खिदमत करके मुझे दिली सुकून महसूस होता था, मगर अल्लाह ने मुझे इस खिदमत का ज़्यादा मौका नहीं दिया। एक दिन एक रोड हादसे में मेरे अब्बा इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। उस दिन मैं बहुत रोई थी। पहली बार मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। अब्बा का एक सहारा था जो मुझसे छिन चुका था, जबकि मेरी माँ का न जाने क्या हाल था। शायद उनके घर वालों यानी मेरे नाना ने उनकी दूसरी शादी कर दी थी। इन लोगों को तो अब्बा पहले ही पसंद नहीं थे। हाँ, अम्मी की पसंद की शादी थी, शायद इसलिए कि अम्मी ने पसंद की शादी की थी। अब्बा के मरने के बाद अम्मा ने चंद दिन सोग मनाया। उसके बाद अम्मा ने सफ़ेद कपड़े और चादर ओढ़ी और पीरी फ़कीरी शुरू कर दी। पीरी फ़कीरी क्या थी, औरतें आती उनको तरह तरह के तावीज़ बनाकर देती, और वो भी उल्टी सीधी बातों पर यकीन करते हुए कुछ न कुछ अम्मा के हाथ पर रख देती। अम्मा इस ज़िंदगी से मुतमईन तो थीं, मगर शायद ज़्यादा का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। एक दिन रात को मेरी आंख खुली तो उमैर कमरे में नहीं थे। हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जबकि आंटी नीचे वाले पोर्शन में थी। उनकी पीरी फ़कीरी का सिलसिला भी वहीं चलता था। ऊपर वाले पोर्शन की बालकनी से नीचे वाले पोर्शन का सहन यानी नीचे वाले पोर्शन की छत साफ नज़र आती थी। उमैर को कमरे में ना पाकर मैं उठी। मैंने जाकर बालकनी से सीधा नीचे देखा
तो सहन में माँ बेटा आग जलाए बैठे थे। खुदा जाने क्या पढ़ पढ़ कर मिर्चों की तरह के दाने आग में फेंक रहे थे। मैं तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई। उस वक्त आंटी अपने चेहरे से किसी शैतान की मूरत लग रही थी। ये मंजर देखकर मेरे दिल पर अजीब सी वहशत तारी हो गई। फिर ये सिलसिला हर रात ही होने लगा। आंटी और उमैर शैतानी अमल करते, जबकि मैं बेबसी से देखती रह जाती। मैं कर भी क्या सकती थी? वो तो माँ बेटा थे और दोनों ही मुझ पर अपना हक जताते थे। मैं कुछ ना बोली। वैसे भी अब्बा की वफ़ात ने मुझे बहुत खामोश सा कर दिया था। एक दिन मैंने बालकनी से नीचे देखा तो आंटी और उमैर मुझे उस जगह भी नज़र नहीं आए जहाँ वो अक्सर बैठकर अमल किया करते थे। अगले दिन मुझे पता चला कि अब उनका शैतानी अमल कब्रिस्तान में होता है। रात के 12 बजते ही वो कब्रिस्तान का रुख करते हैं। वहाँ जाकर शैतानी अमलियात करते हैं और अपनी ताकतें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात पर भी चुप रही और अल्लाह से दुआ करती रही। बेशक जादू करने वाले शैतान को अपना महबूद मानकर हमेशा के लिए इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। मेरे दिल में कभी लालच नहीं आई, ना ही मैं उनकी झूठी इमारत से मुतासिर होती थी। मेरा तो जिस कदर बस चलता, मैं खुद को उनकी इस झूठी दौलत से दूर ही रखती। हत्ता कि मैं उमैर से घर के पैसे भी न मांगती। मेरा जी चाहता कि मैं अपना वक्त भूखा रहकर गुजारूं। ऐसी हराम की कमाई खाने से बेहतर था कि मैं भूखी मर जाऊं। एक दिन सुबह के 10 बज गए। आंटी और उमैर घर नहीं आए। मुझे फिक्र होने लगी। यूं ही शाम के 4 बज गए। मुझे लगा किसी अमल में मसरूफ़ होंगे। रात के तकरीबन 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कब्रिस्तान का गोरकन खड़ा था। उसे देखकर ही दिल दहल गया। उसने बताया कि अम्मा और उमैर की लाश कब्रिस्तान से मसख शुदा हालत में मिली है। आप मुझे न जाने क्या समझेंगे, मगर ये खबर सुनकर मुझे ज़रा दुख नहीं हुआ। हालांकि मैं बेवा हुई थी। बेवा होने पर कोई औरत सुकून महसूस नहीं करती, मगर मेरे दिल को ज़रा भी रंज नहीं हुआ। उमैर और आंटी की वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने अपने शौहर का ये घर एक मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। मैं जानती थी आंटी और उमैर का गुनाह तो ऐसा है कि उनकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, मगर फिर भी भलाई की उम्मीद मुझे अब भी थी। सो मैंने शैतान के इस अड्डे को अल्लाह का घर बना दिया। अल्लाह मेरे इन आमाल को कबूल फरमाए। आमीन।